Let's start the today's class with our chapter Nutrition in Animals. In this chapter, we are going to study about how nutrition takes place in animals. Okay, so we have covered a lot of topics. Today we are going to study how the small intestine works, what is the small intestine, what is bile juice, what is gallbladder, how the digestion of fats take place, where is the stomach located, what is large intestine, okay, and how absorption takes place in the small intestine, okay, how digestion takes place in grass eating animals. So these all are the topics which we are going to cover in today's lecture. But before moving on to today's lecture, let's take a quick recap of what we have studied in the previous lecture. So in the previous lecture we have studied about the organs which are involved in digestion. Okay, so digestion is the process in which food is taken down in the body, it is absorbed, it is broken down into smaller pieces, then after that it gets in a liquefied form. Okay, so the food first is chewed by the mouth. Okay, after chewing by the mouth, it starts to move towards the esophagus. Okay, so in this diagram the things that I'm saying will be clear to you. Okay, so digestion starts from the mouth. The portion from the mouth to the anus is known as alimentary canal. Okay, and mouth itself is known as buccal cavity. Okay, so in terms of digestion, the mouth is known as buccal cavity. So in buccal cavity, teeth, tongue and salivary glands are present for the digestion to take place firstly. Okay, so digestion takes place in mouth firstly. Food, as soon as the food comes inside the mouth, the teeth starts chewing the food. Okay, when the teeth starts chewing the food, the tongue supports the teeth in mixing the food. Okay, and this food along with the chewing and mixing is mixed with some of the digestive juices, okay, which are secreted by salivary glands. The digestive thing that is secreted by the salivary gland is known as saliva. Okay, so saliva is secreted by the salivary gland. Saliva helps in digestion of one of the most important nutrient which we obtain from food. The nutrient which we obtain from food is carbohydrate. Okay, that is very important, and saliva acts on carbohydrate, digests the carbohydrate, and about 30% of the carbohydrate is digested in the mouth only. Okay, so 30% digestion of the carbohydrate or starch. Carbohydrate is also known as starch. So 30% digestion of the carbohydrate or starch is taken place in the mouth with the help of saliva secreted from the salivary glands. Okay, there are three types of salivary glands present in the mouth. Okay, so let's let's do not discuss about them because it's further more detailed version of the digestive system which you will study in class 10th. So let's not go to that detail. Okay, so the digestion of the food takes place in mouth or buccal cavity. Teeth chew the food, break them into smaller pieces. The tongue helps in the mixing of the food. Okay, and the salivary glands digest the carbohydrate nutrient from the food. Okay, let me tell you that there are three important nutrients which are obtained from the food, which are needed for the taking energy from the body, from the food.
okay, for the body. Okay, these nutrients, carbohydrates, proteins, and fats, are the most essential nutrients which are converted into energy for the body to work. Okay, so the three important nutrients are carbohydrates, fats, and proteins. Okay, so the digestion of first important nutrients, that is carbohydrate, takes place in mouth or buccal cavity. Okay, so the carbohydrate is mixed with saliva, then 30% of the carbohydrate is digested with the help of saliva or the salivary amylase enzyme. Okay, what is salivary amylase enzyme? It is an enzyme which is present in saliva. It helps in digestion of the starch or carbohydrate. Okay, then after the digested food moves further, it crosses its way to the esophagus. Okay, the esophagus is also known as food pipe. You can see where the esophagus is present, the long slender pipe like structure is known as esophagus. Okay, beneath the mouth. Okay, so this esophagus is directly connected to the stomach. Okay, when the food reaches from the esophagus to the stomach, there is a very strong hydrochloric acid and the protein breaking enzymes start to act on the food. Okay, the protein digestive and digesting enzymes and the hydrochloric acid starts acting on the food and convert the food into more soluble, more digestified, more liquid form. Okay, after that the acidified food moves to the duodenum portion of the small intestine. From the stomach the food gets moved to the small intestine. Okay, so the first portion of the small intestine is duodenum. Okay, so in the duodenum portion, when the food gets stuck in the duodenum portion for sometimes, the digestive juices begin to act on food. These digestive juices come from liver, gallbladder, and pancreas. The digestive juices which come from liver, pancreas, and gallbladder helps in the digestion of the food, which moves further to the small intestine. Okay, so small intestine has three portions: duodenum, cecum, okay, and jejunum. Okay, so the highly coiled portion in the center of the small intestine is known as jejunum. Last portion is known as uh, cecum. Okay, so from the small intestine the food moves further to the large intestine. Okay, so let me tell you one more thing about the small intestine. It is the longest part of the alimentary canal. Okay, it is the longest part of the alimentary canal. The complete digestion, I must say, the complete digestion of carbohydrate, fat, and protein takes place in small intestine. After that the food moves further to the large intestine, and in the large intestine digestion of water and minerals takes place. Okay, the remaining undigested food moves further to the uh, through the large intestine, and from the rectum it passes to the anus, and then the waste material goes outside the body from the anus. Okay, so I have remind you, or I have uh, re-explained you the process of digestion. Now let's move on to the today's topic, that was small intestine. Okay, so the small intestine is highly coiled. As you can see in the diagram above, in this diagram you can see clearly how coiled is the portion where the small intestine is present. Okay, so small intestine is the longest portion of the alimentary canal, so it has to be fitted in the compact space present in the abdomen. Okay, so in to fit in this compact space in the abdomen, it has to be highly coiled. Okay, it has to
be put in a highly coiled fashion, so that it can easily be assembled in the uh, abdomen. Okay, so the small intestine is the highly coiled portion of the alimentary canal. Okay, so it is the longest portion also. Small intestine is the longest portion of the alimentary canal. The small intestine is about 7.5 meters long. Can you imagine how much that length is? 7.5 meters. Okay, so if I talk about a fully grown adult man, the length of fully grown adult man is 1.8 meters or 1.7 meters. So, 6 times the length of fully grown men or 5 times the length of fully grown men is the length of small intestine. So, it is so long. You can see that the length is very much. Okay, so it receives secretion from the liver and the pancreas. So the first portion of the small intestine is duodenum. So this portion receives the secretion from the liver and the pancreas. Okay, besides, its wall also secretes juices. The walls of the small intestine also secrete some digestive juices which help in the digestion of food. The liver is the reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. So, where is the liver situated? It is situated on the right side in the abdomen. Okay, it is the largest gland in the body. Liver is the largest gland in the body. Understand? So, if anybody asks you the question, which is the largest gland in the human body, then you will answer that liver is the largest gland of the human body. Okay, liver secretes bile juice. This bile juice is stored in a sac called the gallbladder. Okay, so the secretion of the bile juice is done by liver. Okay, but the storage of the bile juice is done by gallbladder. Okay, so the bile plays an important role in digestion of fats. The bile plays an important role in digestion of fats. Okay, the pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. So where is the pancreas located? It is located just below the stomach. And what is the color of the pancreas? Cream colored. Okay, just as the color of the cream. Okay, the pancreatic juice act on carbohydrate, fats and proteins. So the pancreatic juice means the juice secreted from the pancreas is required for the digestion of carbohydrates, fats and proteins, and changes the carbohydrate, fats and proteins into simpler forms. Simpler forms means carbohydrate is converted into glucose, fats are converted into fatty acids and glycerol, and proteins are converted into peptides and peptones. Okay, so this is simply the meaning of changing into simpler forms. Okay, so now I'll try to explain you all in हिंदी. So small intestine जो है सबसे लंबा पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का. अब एलिमेंट्री कैनाल क्या कहलाती है? मुंह से लेकर एनस तक का पूरा एरिया एलिमेंट्री कैनाल होता है. ओके, तो इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? जो पेट से यानी स्टमक से जो खाना आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइजेस्ट कर दिया है, बैक्टीरिया वगैरह को मार दिया है खाने के अंदर, अब वो खाना जो एसिडिक खाना है वो मूव कर रहा है किस तरफ? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. तो स्टमक से खाना कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी है यानी 7.5 मीटर्स की है. 7.5 मीटर्स बहुत लंबी लेंथ होती है. एक इंसान की लेंथ होती है एवरेज 1.7 मीटर्स. सो यू कैन इमेजिन ईजिली कि लगभग 4 टाइम्स जो लेंथ है एक इंसान का, 4 इंसानों को लिटा दिया जाए सीधा सीधा तो इतना लंबा होता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो ये हाईली कॉइल्ड रहता है बीच में और इसके किनारे किनारे जो है एक पेरीफेरी में लार्ज इंटेस्टाइन होता है. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन होता है वो होता है डिओडेनम. तो इस पोर्शन में जो पैनक्रियाज है, ओके, और लीवर है, ये अपने अपने सेक्रीशन यानी अपने अपने जूस सेक्रीट करते हैं. कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि पैनक्रियाज और लिवर भी जुड़े रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी कुछ जूसेस सेक्रीट करती है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है? यहाँ पर
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब लीवर की थोड़ा सा बात की जाए। लीवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एक हल्का सा मरून कलर का, ब्राउन रेडिश टाइप का दिखता है। ओके, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट साइड में प्रेजेंट होता है बॉडी में। ओके, ये क्या सेक्रीट करता है? बाइल जूस सेक्रीट करता है। ये बाइल जूस डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, खाने को पचाने में मदद करता है ये बाइल जूस। ओके, अब इसका बाइल जूस जो है वो कहाँ स्टोर होता है? एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि नाशपाती के शेप का होता है, यानी पियर के शेप का होता है। तो वो ऑर्गन कौन सा होता है? गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। ओके, तो बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल का और क्या काम होता है? जो फैट्स होते हैं, फैट्स अपन को कहाँ से मिलते हैं? जो अपन घी खाते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से, चीज़ खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या मिलता है? फैट्स मिलता है। ओके, तो फैट्स जो है उसका डाइजेशन हो जाता है, यानी वो कन्वर्टेड हो जाता है फैटी एसिड्स और ग्लीसरॉल में। अब वो फैटी एसिड्स और ग्लीसरॉल से बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। ओके, तो बाइल क्या करता है? इस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो अब पैनक्रियाज की बात की जाए तो पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज एक बड़ा सा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के जस्ट नीचे मौजूद होता है। ओके, प्रेजेंट होता है। तो पैनक्रियास क्या होता है? एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है वो किसका डाइजेशन करने में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का। ओके, और उनको कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में। तो ये था सिंपल। अब मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ था कि स्टमक की जो वर्किंग है, यानी स्टमक काम कैसे करता है। मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह अगर फूड के अंदर है, जो अपन ने खाना खाया है उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्टमक का क्या काम है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है स्टमक में, जिसको बोलते हैं पेप्सिन। ओके, तो वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब स्टमक का जो वर्किंग है, यानी स्टमक काम कैसे करता है, वो किसने सबसे पहली बार डिस्कवर किया था? एलेक्सिस सेंट मार्टिन ने डिस्कवर किया था, है ना। इसमें डिस्कवर हुआ था बेसिकली। ओके, किसने डिस्कवर किया था? एक डॉक्टर थे, विलियम बियोमोंट करके एक डॉक्टर थे, बियोमोंट करके एक डॉक्टर थे, विलियम बियोमोंट। तो इन्होंने, एक इंसान था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, इनका इलाज करते समय स्टमक का वर्किंग देखा था कि स्टमक काम कैसे करता है। अब इनका इलाज वो क्यों कर रहे थे? विलियम बियोमाउंट क्यों इलाज कर रहे थे इनका? क्योंकि इनको शॉर्ट गन से, यानी एक बंदूक होती है शॉर्ट गन, उससे गोली लग गई थी चेस्ट पे। ओके, इस पोर्शन में आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इस पोर्शन में इनको गोली लग गई थी। तो इनका स्टमक जो है वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। ओके, तो हुआ क्या था, वो जो बुलेट थी वो उसने चेस्ट की वॉल को डैमेज कर दिया था, यानी जो सीना होता है उसको डैमेज कर दिया था, और स्टमक में एक होल कर दिया था। ओके, तो डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया था, पर वो जो होल है उसको बंद नहीं कर पाए थे डॉक्टर अच्छे से। ओके, तो वहीं पर डॉक्टर को बहुत अच्छा मौका मिला देखने का कि होल के अंदर हो क्या रहा है, स्टमक काम कैसे कर रहा है। ओके, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेशन देखे, मतलब स्टमक की वर्किंग देखी। उन्होंने क्या देखा कि स्टमक जो था वो फूड को मिक्स कर रहा था, चर्न कर रहा था। ओके, मिक्स कर रहा था, और बार बार, जैसे आपने देखा होगा कि सीमेंट वाली जो मशीन होती है, सीमेंट को, गिट्टी को, जो रोड बनाने के टाइम पे आपने देखा होगा कैसे मिक्स करती है गोल गोल घुमा के, वैसे ही बियोमोंट ने देखा कि स्टमक भी फूड को मिक्स कर रहा है। ओके, चर्निंग मूवमेंट से उसका जो स्टमक का वॉल है वो एक फ्लूइड को सेक्रीट कर रहा है, जो कि उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ओके, तो वो फ्लूइड बेसिकली क्या था? वो फ्लूइड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन। ओके, और एक और फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस, वो स्टमक के अंदर की दीवार को प्रोटेक्ट करता है।
किससे? स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि स्टमक को जला सकता है, वो अंदर से खराब कर सकता है। तो उससे स्टमक को ही प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक खुद सेक्रेट करता है म्यूकस। ओके, सो ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। उन्होंने ये भी पाया था कि स्टमक का जो एंड है वो कहाँ पे ओपन होता है, यानी कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना तभी पहुंच सकता है जब स्टमक में खाने का प्रॉपर डाइजेशन हो जाए। जब स्टमक एक बार डाइजेस्ट कर लेता है खाने को, तो फिर खाना कहाँ पहुंचा दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बार खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो वापस से स्टमक के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि एक जो वॉल्व होता है वो बंद हो जाता है। ओके, सो मैं एक बार और बता देता हूँ कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बियोमोंट। ये जो विलियम बियोमोंट जी थे, इन्होंने क्या किया कि इनके पास एक पेशेंट आया जिनका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। 1822 में, बहुत पहले की बात है, लगभग 200 साल पहले की बात है। तो एक पेशेंट आया, उसको गोली लगी हुई थी कहाँ पर? स्टमक के ऊपर, मतलब चेस्ट एरिया में गोली लगी हुई थी। ठीक है, तो अब इन्होंने ये देखा, यानी डॉक्टर जो विलियम थे, उन्होंने ये देखा कि जो स्टमक है उस पे होल हो गया है। ओके, तो अब डॉक्टर ने उस पेशेंट की जान तो बचा ली, वो बुलेट को निकाल दिया उन्होंने, लेकिन वो होल को वो पूरी तरह भर नहीं पाए थे। तो अब उस होल से जो अंदर दिख रहा था, वो क्या दिख रहा था कि स्टमक के अंदर मिक्सिंग ऑफ फूड होता रहता है। अलग अलग तरीके के जो सब्सटेंसेज हैं वो सक्रीट होते रहते हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, और एक और चीज़ देखी गई कि स्टमक फ्लूइड भी सेक्रीट करता है, जो कि फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, और स्टमक बाद में कहाँ पर ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक जो है ओपन होता है। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना तभी आएगा जब कंप्लीट डाइजेशन स्टमक के अंदर हो चुका हो खाने का। ओके, सो ये थी कहानी। अब नाउ द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो खाना पार्शली डाइजेस्ट हो गया है, यानी आधा डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, स्टमक ने खाने को आधा डाइजेस्ट किया, अब वो कहाँ पहुँच गया? इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी थोड़ा बहुत डायरेक्ट किया, अब जो थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुँच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन में, जहाँ पर इंटेस्टाइन से सक्रीट होने वाली, स्मॉल इंटेस्टाइन से सक्रीट होने वाले जो जूस थे, उन्होंने डाइजेशन को कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट किया? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया किसमें? सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में, फैट को तोड़ दिया फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को तोड़ दिया अमीनो एसिड्स में। मैंने आपको बताया था। ओके, सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ओके, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? सो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, तो क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। ओके, तो अब वो ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट होने का मतलब है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट टूट गया, किसमें? डाइजेस्ट हो गया ग्लूकोज में, ग्लूकोज बन गया, फैट्स से बन गया फैटी एसिड्स और ग्लीसरॉल, प्रोटीन से बन गया अमीनो एसिड। तो ये जो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और ग्लीसरॉल और अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। ओके, ब्लड में ये हर एक सेल तक जाते हैं, क्योंकि हर एक सेल को खाना पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसी खाने से हर एक सेल अपने आप को जिंदा रखता है। ओके, so that's how the digestion or the absorption takes place. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner wall of the small intestine have thousands of finger like outgrowth. अब small intestine के अंदर वाली वॉल में बहुत सारे उंगली जैसे छोटे छोटे, वो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं विलाई। ओके, तो विलाई जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वही ब्लड वेसल से खाना जो डाइजेस्ट होकर जाता है वो हर एक सेल तक पहुंच जाता है, यानी ब्लड में आ जाता है बेसिकली। ओके, अब ब्लड से खाना हर एक सेल तक पहुंचता है, हर एक सेल को एनर्जी मिलती है। ओके, और वही एनर्जी से पूरी बॉडी चलती है। ओके, सो कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई
इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो मैंने बता दिया विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा होता है। अब वो जो ब्लड होता है तो विलाई क्या करते हैं, खाना जो डाइजेस्ट हो गया है उसको सीधा सीधा ब्लड में पहुंचा देते हैं विलाई के थ्रू। ओके, तो विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विलाई क्या करते हैं, फूड के डाइजेस्ट होने का जो सरफेस एरिया है, यानी पहले कम एरिया में डाइजेस्ट हो रहा था, अब वो एरिया बढ़ा दिया है किसने, विलाई ने। अब वो ऊपर निकल के आ गए हैं फिंगर जैसे। ओके, तो वो नॉर्मल सी बात है कि वो डाइजेस्टेड यानी एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देंगे। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर जो विलस होता है यानी विलाई होता है, हर विलाई के अंदर बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जिनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ओके, द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। अब जो विलाई की सरफेस है वो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, यानी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा था तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, फैट से फैटी एसिड्स और ग्लीसरॉल बन रहा था तो फैटी एसिड्स और ग्लीसरॉल एब्जॉर्ब हो जाता है, और प्रोटीन से बन रहा था एमिनो एसिड्स तो एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं विलाई की सरफेस से। ओके, तो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कहाँ जाते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स को इस सब्सटेंसेस की ज़रूरत है उन ऑर्गन्स तक ब्लड इन सब्सटेंसेस को पहुंचा देता है। कौन से सब्सटेंसेस को, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और ग्लीसरॉल और अमीनो एसिड्स। ओके, क्योंकि ये सब्सटेंसेस पूरी बॉडी में ताकत देने का काम करते हैं, या फिर सेल्स को बनाने का काम करते हैं, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तीनों बातें एक ही है। ओके, सो दैट्स हाउ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। सो यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है, थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स। तो जो सब्सटेंसेज एब्जॉर्ब हो गए हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ओके, टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, जहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज बना लेते हैं, जैसे प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ओके, तो बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। वो प्रोटीन अपन को कहाँ से मिल रहा है, खाने से मिल रहा है। उस खाने को कौन पहुँचा रहा है, उस खाने को अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है वो फूड से मतलब माउथ से होते हुए, ईसोफेगस से, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई हैं उनसे खाना एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँच रहा है, ब्लड के अंदर पहुँच रहा है, और खाने से प्रोटीन भी पहुँच रहा है। वही प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है फूड से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अलग करके ब्लड में मिला देना, ताकि ब्लड उनको ज़रूरत वाली जगहों तक पहुंचा सके। ओके, इन सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। सेल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो एनर्जी रिलीज कर देता है। ओके, तो ये कहाँ पर होता है, सेल्स के अंदर होता है। इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ओके, तो सेल्स के अंदर कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, तो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, ग्लूकोज टूट जाता है किसमें, ऑक्सीजन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यानी ग्लूकोज किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ओके, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, और एनर्जी रिलीज हो गई। तो यही एनर्जी किस काम आती है, अपनी बॉडी को चलाने के काम आती है। ओके, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो जो खाना अब बचा खुचा बच गया है, जो अब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली मैंने आपको बता दिया है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है, सबसे पहली बात, ये थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी चौड़ी होती है और छोटी होती है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है और लंबी होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी और छोटी होती है। ये सिर्फ 1.5 मीटर की होती है। इसका मेन काम क्या होता है, वाटर और कुछ सॉल्ट्स और मिनरल होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करना उस खाने से जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले खाने से लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व कर लेता है कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, वाटर और मिनरल्स। ओके, तो जो बचा खुचा वेस्ट था वो रेक्टम में आके एनस से बाहर निकल जाता है सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में।
ओके, द फीकल मटीरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो फीकल मटीरियल है वो समय समय से एनस से निकलता रहता है। जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो खाना जो है वो बाहर निकल जाता है। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ओके, इजेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है जो कि फूड से तैयार हुआ है, डाइजेस्टेड फूड से जो वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ओके, और फूड मतलब खाना खाने को क्या बोलते हैं, इंजेशन। ओके, so there is a difference between both. Okay, so tomorrow we'll continue with the digestion in grass eating animals. Okay, so please मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि प्लीज़ गाइज keep revising all the lectures as much as you can. Okay, so this will help you for the formation of your basics which are very necessary. Okay, so that's all for now guys, thank you so much.